Hello everyone. As you know that I am doing Indian Polity by M. Lakshmikant. Last class we have seen the chapter number 2, which is nothing but was the making of constitution. Okay. Last class we have completed that chapter. Today we are going to start a new chapter, which is chapter number 3, which is nothing but salient feature of the constitution. Okay. This is about myself. So let's start. Again, there will be many parts with this chapter because a lot of content is given here. So this is the part 1. So let's see what is given in this chapter. Okay, so first we'll see the introduction. What is given in the introduction? See, the constitution is unique in its content and spirit, though borrowed from almost every constitution of the world. The Constitution of India has several salient features that distinguish it from कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज. ठीक है, देखिए ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवन दो इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस from the world, but still it has very distinct features because the constitution maker, they have taken the idea from the other constitutions, but they have modified it as per our need. Okay, that time they have feel that okay, this thing we have to add, we have to choose from this constitution, and they have modified those things and they have put it in the constitution. Okay, so we'll see those things. Okay, so it should be noted at the outset that the number of original features of the constitution as adopted in 1949 have undergone substantial changes on account of several amendments, particularly 7th, 42nd, 44th, 73rd, 74th and 97th amendments. ठीक है, अब देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें अदर कंट्रीज से ली गई थी, कुछ चीज़ें उसमें ऐड किया गया था. तो समय के साथ when they have found that okay, these things we have to change, so they have started doing amendments. So those things given here, like these amendments, nothing but 7th, 42nd, 44th, 73rd, 74th, 79th, 97, etc. Okay. In fact, 42nd Amendment Act 1976 is known as mini constitution. ठीक है, अब जो 42nd Amendment Act 1976 में हुआ था, आपको थोड़ा बहुत याद होगा, उस समय इमरजेंसी वगैरह लगी थी, तो उसमें इतना ज़्यादा चेंजेस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, so that changes itself is known as mini constitution. Okay, due to important and large number of changes made by it in various part of the constitution. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इसमें किया गया था, इसके वजह से इट लुक लाइक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. इसके बाद फिर इसको जितने भी चेंजेस हुए थे उसको रीइंस्टेट किया गया था. ओके, 44th अमेंडमेंट एक्ट फिर आया था, उसके बाद जो भी वैसे चेंजेस थे जो इट वाज अफेक्टिंग द एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन, सो दे हैव चेंज दैट. Okay, so if you read the history part, you will come to know. I'm not going to talk those things. However, in the Kesavanand Bharati case, 1973, the Supreme Court ruled that constituent power of Parliament under Article 368 does not enable it to alter the basic structure of Constitution. देखिए, अब केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में. ठीक है, so it was landmark case in the Supreme Court. It has actually Supreme Court come up with the term which is called basic structure. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के थ्रू बोला था कि पार्लियामेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर होता है अंडर आर्टिकल 368, दे कैन नॉट दे कैन मेक अमेंडमेंट्स बट इट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब जैसे आप न्यूज़ में हमेशा सुनते रहते हो, कोई केसेस होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आती है, फिर बोलती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, तो वो वही चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि जो समथिंग विच इज़ डन बाय द पार्लियामेंट, एंड इफ इट इज़ you can say that
the basic structure of, if it is changing the basic structure of constitution, then it will be unconstitutional. ठीक है, जैसे कि अभी आप रिसेंट में सुने होंगे ट्रिपल तलाक था, ठीक है, तो उसको उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है दैट टर्म एक्चुअली इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। ऐसे बहुत कई जगहों पे यू जस्ट ट्रैक द न्यूज़ एंड ट्राई टू सी द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यू विल फाइंड दैट। देखिए अब जैसे बेसिक स्ट्रक्चर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे कुछ नहीं था, फिर गवर्नमेंट ने उस समय पूछा कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अमेंडमेंट करो, फिर हम बताएंगे कि ये इट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इट इज़ एक्चुअली नॉट अ फिक्स थिंग, कल को फिर से कुछ पार्लियामेंट करती है और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नो दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, they will repeal that. Okay, so this is nothing but is the Kesavanand Bharati case 1973. आपको इसके बारे में कभी और अगर आगे आता है, we'll see fundamental rights and all those chapters we'll see. So ये फिर से आएगा, वहाँ पे दोबारा आएगा, तो ये क्या था एक्चुअल में इसके बारे में और अच्छे से बताऊँगा मैं, अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Then salient features, अभी देखिए तो introduction part था। now actually we are going to see the what is the salient features of the constitution, which is nothing but this chapter. So it is very long, a lot of things is given, so one by one we'll see. देखिए जो first इसका जो salient feature है, it is lengthiest written constitution, ठीक है। कैसे lengthiest written constitution है, देखिए constitution और classified into written like American Constitution and unwritten like British Constitution। देखिए दो टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक रिटन होता है, एक अनरिटन होता है। जैसे रिटन किसका है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ब्रिटिश का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। देखिए अनरिटन का मतलब ये नहीं कि लिखा हुआ नहीं है, जैसे पार्लियामेंट में जैसे रिटन का मतलब ये होता है कि हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, उन्होंने लिखा, लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बनाई गई थी, उनका जो पार्लियामेंट है उसने ही बना दिया, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन एज अनरिटन। ऐसा नहीं कि लिखा हुआ है, बट उनकी पार्लियामेंट ने उसको बनाया हुआ है। ऐसा कोई बॉडी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के फिर नहीं बनाया गया। बट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा हुआ था कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, फिर उन्होंने उसको लिखा कि हाँ दिस विल बी आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, फिर लिखा गया, सो दैट इज नथिंग बट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट इन ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अमेरिकन के अलावा और भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिटन है, बट जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये लेंथीएस्ट है, सबसे बड़ा है, विच इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इलैबोरेटेड एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, इलेबोरेटेड एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब खुद देखो, इससे पहले वाले हम लोग लेक्चर में देखे हैं कि देयर इज प्रियम्बल है, 395 आर्टिकल्स है, 8 शेड्यूल्स है। ये उस टाइम पे था जब बना था, अभी तो शेड्यूल्स बढ़ गए हैं, ठीक है। 11 शेड्यूल हो चुके हैं, तो 11 12 शेड्यूल हो चुका है, ठीक है। तो इट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग, आर्टिकल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, ओके। तो इनिशियल में ही काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स इसमें दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे वही चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था यहाँ पे दिया हुआ है। ओरिजिनली 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स डिवाइड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। प्रेजेंटली 2016 मैं चूँकि 5th एडिशन फॉलो कर रहा हूँ, तो 2016 है। अगर आप 24 या जो भी 23-24 का फॉलो करो तो उसमें थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ आपको मिल सकता है। बढ़ा हुआ क्या मतलब, कुछ लॉज अगर पास हुए होंगे नए, बड़ी से कुछ अमेंडमेंट हुए होंगे, तो वो चीज़ बढ़ा होगा। बट लार्जली जैसे ब्रॉडर वे में बोला जाए तो ये जो है वही है, ठीक है। इतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। कुछ नया आर्टिकल तो नहीं आया, बट जो आर्टिकल एग्जिस्टिंग है उसी में कुछ एडिट हो जाता है ABC करके, ओके। So presently 2016 it contains
It consists of a preamble about 465 articles divided into 25 parts and 12 schedules. ठीक है, पहले मैंने आपको बता दिया कि अभी प्रेजेंट टाइम में we have preamble 465 articles which is divided into 25 parts and 12 schedules. Okay. Next, the various amendments carried out since 1951 have deleted about 20 articles in one part, which is 7, and added about 90 articles, 4 parts, 4A, 9A, or 9B, and you can say 14A, and 4 schedule 9, 10, 11, 12. ठीक है, मतलब वही बोल रहा है कि कुछ हटा दिया गया था, वो ये हटाया गया था, कुछ ऐड कर दिया गया है, वो ये चीज़ें हैं. आप इसको देख लो एक बार और. ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दे हैव एडेड and these are the things which is removed. No other constitution in the world has so many articles and schedules. ठीक है, अब ऐसा बोला जा रहा है कि दुनिया में और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी में भी इतने आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स नहीं हैं. ओके, देन 4 factors have contributed to elephantine size of our constitution. अब देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना लेंथीएस्ट ऐसा क्यों है. ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ा ऐसा बनाने की. तो द रीज़न इज दैट they told that there is 4 factors due to which it is like its size is elephantine size. Okay, so the first is nothing but the geographical factors, that is vastness of the country and its diversity. अब देखिए हमारा कंट्री काफ़ी बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री, उसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनका कल्चर अलग है, उनकी लिविंग स्टाइल अलग है. तो उन सबको देखते हुए उसको बनाया गया. ठीक है, तो इस वजह से दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न ऑफ मेकिंग लेंथीएस्ट और यू कैन से द बल्कीएस्ट और एलिफेंटाइन साइज. सेकंड, हिस्टोरिकल फैक्टर, दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच वॉज बल्कि. अब देखिए हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन इसका काफ़ी एक मेजर पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है. तो ये जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930, ये इट सेल्फ ही काफ़ी बड़ा सा था, बल्कि था. अब वहाँ से चीज़ें आप लोगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो बड़ा होना ही होना है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. देखिए जैसे आप अमेरिका की बात करोगे ना, तो अमेरिका में एक तो उनका पूरे कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर उनके अलग अलग स्टेट के खुद के कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, तो ये एक रीज़न है उनके बहुत थोड़े से आर्टिकल्स दिए हुए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में. बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज़ फॉर बोथ फॉर द सेंटर एंड स्टेट. जम्मू एंड कश्मीर देखिए अभी हम जब ये मैं चूँकि 16 एडिशन फॉलो कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे आर्टिकल 370 को हटाया नहीं गया था, बट अभी प्रेजेंट टाइम में हटा दिया गया है. ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 370 हट चुका है. ठीक है, तो अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी ये लागू है अभी. ठीक है, वो पार्लियामेंट ने बोल दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे भी लागू. तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे दिस इज़ रॉन्ग, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर नहीं, यहाँ पे भी अप्लीकेबल है. ठीक है, तो सिंगल ये बड़ा होने का ये भी एक रीज़न है कि ये सेंटर एंड स्टेट दोनों के लिए है, इस वजह से भी बड़ा है. ठीक है, क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो तो स्टेट के लिए भी दिया हुआ है ना, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर एक्सेट्रा. ठीक है, फिर सेंटर के लिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो सबको कवर किया. तो ऑब्वियसली बात है कि इट विल बी लेंदी. उसके बाद डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ठीक है, अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लॉयर्स वगैरह खूब ढेर सारे, तो वो लोग उस हिसाब से फिर किए हैं. ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ बिकमिंग लेंथीएस्ट. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन. ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल को ऑफ गवर्नेंस इसको ही कंटेन करा, बट इट इज़ ऑल्सो डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न. ठीक है,
तो ये क्या है कि जैसे मान लो इसमें फंडामेंटल राइट भी है, डीपीएसपी की भी बात हो रही है, फिर हमारी कंट्री में गवर्नेंस कैसे होगा, है ना, प्रेसिडेंट कैसे वर्क करेंगे, प्राइम मिनिस्टर कैसे वर्क करेंगे, चीफ मिनिस्टर कैसे वर्क करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होगा। ओके, इसके अलावा काफ़ी एवरीथिंग इज गिवन देयर। सो दैट्स वाई दिस इज वेरी बिग डॉक्यूमेंट. Further, those matters which is other modern democratic countries have been left to the ordinary legislation or established political convenience have also been included in the constitutional document itself in India. ठीक है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है इतना. अब देखिए सेकंड फीचर क्या है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स. Okay, we'll see what are things have been drawn. The Constitution of India has borrowed most of the provision from its constitution of various other countries as well as from Government of India Act 1935. अब देखिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अदर कंट्रीज की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से भी आइडिया लिया गया है, बट इसका एक लार्जर पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिया गया है. ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्राउडली क्लेम दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर रीसेकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, अब देखिए कई क्रिटिक्स ऐसे बोलते हैं कि इट इज़ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, लेट्स से इट इज़ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बट जैसा जैसा लिखा हुआ है वहाँ से बस ले लिया, ऐसा नहीं है. हमारे लोगों ने क्या किया कि जितने भी वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ा, फिर देखा कि हाँ ये वाली चीज़ हमें लेना चाहिए, अब उसको वहाँ से उठाया और फिर उसको उसमें मॉडिफिकेशन किया कि ये हमारे लोगों के लिए किस तरीके से बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि बस उठाया बस वैसे डाल दिया, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो दैट्स वाई Dr. B.R. Ambedkar said proudly say that it is actually it has been framed after restaking all the known constitution. ठीक है, मतलब आपको restaking पता है ना कि उसको हिला के पूरा देखा गया है कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं उसमें, हमारे लोगों के लिए क्या अच्छा हो सकता है, फिर उसके बाद उसमें ऐड किया गया है. ओके, इट्स नॉट अ borrowed. Then the structural part of the constitution is to a large extent derived from the Government of India Act 1935. ठीक है, ऑब्वियसली जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसे किया गया है, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उस वो जैसे है वैसे ही लगभग थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके किया गया होगा, बट उसका स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है. ओके, then philosophical part of the constitution, the fundamental rights and DPSP, directive principle of state policy, derive from inspiration from the American and Irish constitution. देखिए जो फंडामेंटल राइट है ये हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको शॉर्ट में DPSP भी बोलते हैं, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, आयरलैंड. ओके, आप इसको याद कर सकते हैं, मैच लिस्ट में आपको मिल सकता है एग्जाम में. ओके, सो फंडामेंटल राइट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द American Constitution, and DPSP, which is nothing but is the directive principle of state policy, which is taken from the Irish Constitution. Okay, which is also known as Ireland. The political part of the Constitution, the principle of cabinet government and the relation between the executive and legislature have been largely drawn from the British Constitution. ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे वो उनके यहाँ ऐसे चलता था, हमारे इवन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये चीज़ दिया हुआ है, तो इसको जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिलेशन बिटवीन द एक्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये सारी चीज़ें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ था, तो ये चीज़ को उन्होंने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ें ली गई हैं, द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR, नॉर्थ रसिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन. ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ों को लिया गया है अदर कंट्रीज से.
आएगा अब ना पॉलिटी में किस किस जगह से क्या क्या लिया गया, वो सब आगे के चैप्टर्स में जो हम लोग जाएंगे। ये तो बेसिक चैप्टर है, बट आगे के चैप्टर्स में जाएंगे तो प्रॉपर कनाडा से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, जर्मनी से क्या लिया, सब कुछ you'll find. Okay, no problem. So as of now you just see that there is other provisions which has been taken from the other countries, uh, other countries, and those countries are Canada, Australia, Germany, USSR, North Russia, France, South Africa, Japan, and so on. Okay, the most profound influence and material source of the constitution is गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1931। देखिए ये चीज़ कई बार आ चुका है, बट आप एक लाइन में ये समझो कि काफ़ी एक बड़ा पार्ट हमारे जो प्रेजेंट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया है। ठीक है, अब इसमें वो मेंशन कर दिया क्या क्या चीज़, जैसे मटेरियल सोर्स, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ थिंग यहाँ से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द फेडरल स्कीम, okay, the federal scheme, judiciary, governor, emergency power, the public service commission, and most of the administrative details are drawn from this act। अब देखिए और इलेबोरेट कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, इससे क्या क्या ली गई हैं, जैसे कि फेडरल स्कीम हुआ जो हमारे ना सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, जुडिशरी कैसे वर्क करेगी, गवर्नर का क्या रोल है, इमरजेंसी पावर, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी की बात हो रही है, मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल जो इसमें दिए वो सारी चीज़ें इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट, मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आइडेंटिकल टू और बियर अ क्लोज रिसेम्बलेंस ऑफ एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, ये लाइन बार बार देखिए 50% से ज़्यादा जो है यहाँ से लिया गया है। अब इस चीज़ को मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेलेंट फीचर इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, कैसे रिजिड है, कैसे फ्लेक्सिबल है, दोज थिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अब जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल ऐसे बोला जाता है कि कौन सा किस में आसानी से अमेंडमेंट कर दिया जाता है, किस में ना काफ़ी टफ होता है अमेंडमेंट करना। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें अमेंडमेंट करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ब्रिटिश में क्या उनकी पार्लियामेंट हाँ बोल देगी कि हाँ ये इसको कर दो, तो आराम से हो जाएगा। ओके, so based on that the constitution has been classified based on whether it is rigid or whether it is flexible। Okay, or rigid constitution is one that require a special procedure for its amendment। for example American constitution, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि rigid constitution वो होता है कि जिसको amend करने के लिए ना special procedure is required। okay, so then it can be amended। तो जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ रिजिड, वेरी वेरी रिजिड। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अदर हैंड इज वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉ आर मेड एज फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और फ्लेक्सिबल वो है कि जैसे ऑर्डिनरी लॉ को हम चेंज कर सकते हैं, उसी तरीके से वी कैन चेंज। ओके, तो जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो इजीली अमेंड हो जाता है, उनकी पार्लियामेंट चेंज कर सकती है चीज़ों को एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट सिंथेसिस ऑफ बोथ। अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है। ओके, आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स टू टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स। ठीक है, और जो आर्टिकल 368 है इट टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट्स, दो टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स के बारे में बताता है। ठीक है, देखिए अब जैसे कि हमारा अब आपको पता है ना किसी पार्लियामेंट में आप देखते रहते होंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी वो चाहिए होता है बिल पास करने के लिए, या फिर जैसे मनी बिल है उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, या ऑर्डिनरी बिल के लिए
सिंपल मेजोरिटी चाहिए, 50% प्लस वन चाहिए होता है। ओके, सो जब स्पेशल मेजोरिटी आएगी तो वो थोड़ा सा रिजिड हो जाता है, ठीक है, बट ऑर्डिनरी बिल ईजिली चेंज हो जाता है, तो दैट इज़ फ्लेक्सिबल। सो ओके, so there is two type of amendments. Some provisions can be amended by special majority of parliament, ठीक है, तो कुछ amendments जो कि amended can be amended by special majority, that is nothing but 2/3 majority of the member of each house present and voting, ठीक है। अब 2/3 मतलब मान लो 300 लोग हैं, जैसे अब नंबर में आपको कैसे बताऊँ, ठीक है, 2/3 आपको पता है, ठीक है, वट एवर जितने भी लोग, मान लो 500 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वो उसमें से 2/3 चाहिए, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी में ये होता है कि मान लेते हैं कि लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, ठीक है, अब 543 का 2/3 निकालो, ठीक है, अब मान लो 350 आता है, ठीक है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, यू कैन जस्ट कैलकुलेट दैट, लेट्स से 350। अब मान लो जिस दिन वोटिंग होनी उस दिन 400 ही लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, बट स्टिल पास करने के लिए 350 ही चाहिए, ठीक है। अब मान लो 545 543 भी बैठे हुए हैं तो भी 350 चाहिए, और अगर 400 बैठे हुए हैं तो भी 350 चाहिए, दिस इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। जो प्रेजेंट एंड वोटिंग तो 2/3 ही चाहिए, मतलब टोटल का 2/3 चाहिए। ओके, सो दिस इज़ डिफ़िकल्ट। अगर मान लो कि कोई ऐसी पार्टी है जिसके सिर्फ 300 ही MPs हैं एंड दे वांट टू मेक सम अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी वाला, दे कांट डू दैट, ओके, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, ओके, बट या जो सिंपल मेजोरिटी कर सकते हैं, एंड द मेजोरिटी दैट इज़ मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ ईच हाउस, ठीक है। एंड जो और एक सिंपल मेजोरिटी होती है जिसमें 50%, ठीक है, मान लेते हैं कि 500 है तो 250 प्लस 1 251 वोट पड़ेगा, और वो इट कैन बी दैट इज फॉर द ऑर्डिनरी बिल, इट कैन बी पास। ओके, सो देर इज 2 टाइप ऑफ मेजोरिटी इन द फॉर द बिल्स। Some other provision can be amended by special majority of the parliament with ratification of half the total states। अब देखिए कुछ ऐसा भी होता है कि एक तो देखिए अमेंडमेंट्स हो गया, ठीक है, उसके लिए 2/3 हो गया। अब कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें लेट्स से जो हमारा है ना फेडरल स्टेट्स जो रिलेशन है उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो होता क्या है कि स्टेट असेंबलीज में भी 50% का रेटिफिकेशन लिया जाता है, जैसे 2/3 तो होगा ही, इसके बाद जो भी मान लेते 28-29 स्टेट है हमारे, तो 28 स्टेट है, तो उसमें से 50% मतलब 14 स्टेट को 50% मतलब उनको उनका चाहिए यस कि हाँ आप ये वाला अमेंडमेंट करो तो ही हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे तेलंगाना, आंध्रा से तेलंगाना को निकालना था, ठीक है, तो उसमें पार्लियामेंट में हमें 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए ही पास करने के लिए, प्लस उनको 50% स्टेट से भी पूछना पड़ेगा कि ओके हाँ वेदर वी हैव टू डू और नॉट, अगर उन्होंने कहा तो ही दे कैन डू दैट। ओके, तो कुछ जैसे GST का है, क्योंकि GST में भी हमारे स्टेट का जो हमारे फाइनेंस कमीशन से जो भी पैसे कलेक्ट होते हैं, क्योंकि स्टेट जो है अपनी पावर को सेंटर को देने वाले, जैसे उनको वैट होता था, अलग अलग टैक्सेस होते थे, दे ऑल वर मर्ज विद द GST, ठीक है। अब वो अपनी पावर को सेंटर को दे रहे हैं, तो अब उनका तो चाहिए ना कि हाँ ठीक है हम दे रहे हैं, तो उनसे आपको पूछना पड़ेगा कि नहीं। सो दैट्स वाई इन दीज काइंड ऑफ केसेस लाइक GST और स्टेट से ना स्टेट को डिवाइड करना है फिर ऐड करना है, तो स्टेट से तो पूछना होगा ना, तो उस केस में 50% रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट एज वेल इज रिक्वायर्ड। ओके, सो अब ये चीज़ डिफ़िकल्ट होता है। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ यहाँ पे ये रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, इस केस में रिजेक्ट हो जाता है। बट अगर मान लो हमें ऑर्डिनरी बिल पास करना है तो सिंपल आराम से हो जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल, ठीक है। ओके, एट द सेम टाइम सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट बाई सिंपल मेजोरिटी, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको,
of the parliament in the manner of the ordinary legislative process. Notably, these amendments so do not come under Article 368. ठीक है, अब ऑर्डिनरी बिल को पार्लियामेंट में लाके पास करना है सिंपल मेजोरिटी से, दैट इज़ नॉट कम अंडर अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368. गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डिनरी बिल लाके राज्यसभा में लोकसभा में पास करा के प्रेसिडेंट का एसेंट लेके उसको लॉ बना सकती है. बट जब अमेंडमेंट होता है तो वो इट कम्स इनटू आर्टिकल 368. Okay, so this is the end of this video, but is not the end of this chapter. There will be many parts because a lot of things is given in this silent features. We'll see one by one. We have seen few things in this. Thank you for watching. Bye bye.